Question number 2 here, give the equations of two lines passing through the point 214. How many more such lines are there and why? Now, before we write down the equations of the lines which would pass through this point, can you simply answer how many lines can pass through this given point? Infinite. Infinite. Can you tell me why? Or can you give an example which would support your answer? We are given 1 point. This will act as the center of the circle. That's right. Like the circle has many points. Yes. We could think of the center of the circle, and there are infinitely many diameters which can pass through that center. So those infinitely many diameters act as the lines. In general, अगर आपके पास कोई भी एक point है, आपके पास plane पे एक point है, you can draw infinitely many lines through that point. और अगर आपके पास दो points हो, then we can draw only one line. Correct. If we are given 2 points, then there is only one line which will pass through both the points. Unique line hogi wo. Shivom, beta, are you trying to join from some other device? Yeah, ma'am. Record. So here, the second part can be answered directly. How many more such lines are there and why? But for the first part, हमें equations बनानी है, which will be satisfied by this given point. अब अगर आपको इक्वेशन लिखनी है ऐसी लाइन की जो इस पॉइंट में से पास होती हो, हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन का सोल्यूशन बनना चाहिए. वी आर गोइंग बैकवर्ड्स. हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमारे पास इक्वेशन थी, हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, वो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो पॉइंट्स बन जाते हैं. तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, इट शुड एक्ट एज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यू आर गोइंग टू राइट डाउन. 214 is the point जो आपकी पहली वैल्यू है ordered pair की. This will tell you what is the value of x, and the second value in the ordered pair tells you what y is. Try to think of the relation which will satisfy this. ये दो values को satisfy, इन दो values से satisfy होने वाला कोई भी relation आप सोचो. I'll give one example. Think of this relation. Y equals to 7 times x. ये जो दो वैल्यूज हैं आपके पास x की और y की, अगर आप यहाँ पे यूज करो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. y आपके पास 14 है और x आपके पास 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. सो दिस पॉइंट 2,14 is the solution of this equation. This is a little complicated. Another example could be this. Tell me if this is an equation satisfied by 214. एक इक्वेशन मैंने ये लिखी थी, सेकंड इक्वेशन मैंने ये लिखी है. इसमें अगर आप x पे 2 यूज करो और y की जगह पे 14 यूज करो,
आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? Using the same concept, can you give me a few more examples? उन्होंने वैसे I think 2 कही हैं, but just for the sake of understanding, can you give me 2 more examples? Equations बनानी है जिसमें अगर हम x की जगह पे 2 लिखें और y की जगह पे 14 लिखें, वो equation satisfy हो जाए. What do you think about this? I'm satisfied. Ma'am, can I give one more equation? Yes, go ahead. Ma'am, if we will multiply x into y means 2 into 14, then it would be equal to 28. That's right. You could have done that, but we are writing down linear equation. If you multiply x and y, it will become quadratic. वो प्रोडक्ट जब बनेगा तो टर्म की जो डिग्री होगी वो 2 बन जाएगी. प्रोडक्ट नहीं आता आपके पास, सिंगल सिंगल टर्म्स आएंगी, एक x वाली, एक y वाली और एक कांस्टेंट अगर आपको चाहिए. यू कुड मल्टीप्लाई देम विद नंबर्स. फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कर सकते हो 2x equals to y minus 4 or wait y minus 10. See, ट्रायल एंड एरर की तरह हम कर रहे हैं. Yes, ma'am. राइट. और सोच सकते हो, आपको अगर ऐसे नहीं करना आप ऐसे कर सकते हो, ये इजी है. x को डबल करके y के साथ ऐड करो, क्या बनेगा? यूज दीज वैल्यूज इटसेल्फ. ये जो वैल्यूज दी हैं, डबल ऑफ x प्लस y 18 बन जाएगा. ये इक्वेशन बन जाएगी. ये जितनी इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं, इन these equations are satisfied by the point given to me. Just give me a minute. I have to confirm whether these students are from your class. You were asked to write down only 2 equations which will pass through this point. I have written here 5 equations. आप कोई 2 लिख सकते हो. And what do you think from this concept here? मैंने 2 लिखने की बजाय 5 equations और लिख दी. Sorry, I have written 5 in all. I could have written more. So यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा to answer the second part of the question कि हम ऐसी कितनी equations बना सकते हैं. उन्होंने वैसे पूछा कि कितनी लाइंस पास करेंगी, वो आपका ज्योमेट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है. इफ यू आर गिवन 1 point, there will be infinitely many lines which can pass through one given point. Other than geometrically अगर हम चेक करें, इस तरह से इक्वेशन बना के आप चेक करो तो हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं for the lines passing through this point. There will be infinitely many answers. I have written 5. You can give any 2 out of these 5 or you can form any 2 on your own. Tell me if this is clear कि हमने equations बनाई कैसी हैं. Anyone who could not understand कि ये मैंने किस तरह से लिख दिया. आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो पॉइंट जो आपको दिया हुआ है वहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. ट्राई टू राइट डाउन अ रिलेशन यूजिंग दोस 2 नंबर्स. एक बार इनको ऐड कर लो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लो. किसी को आप डबल ट्रिपल करके दूसरे में ऐड कर सकते हो. Or if you can see if there is any relationship directly between the 2 numbers. The value of y is 7 times the value of x. So मैंने
यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी मैंने ये यूज करके बनाई थी, वैल्यू ऑफ y इज 7 टाइम्स द वैल्यू ऑफ x। आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना, आप सिंपली ये इक्वेशंस लिख सकते हो, बट डू इंश्योर कि जो भी इक्वेशन आपने लिखी है उसमें अगर आप यहाँ से वैल्यूज यूज करो x और y की, वो सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा ना हो आप लिखते लिखते कुछ गड़बड़ कर दो। ठीक है, जस्ट कंफर्म दैट। After that, answering the second part, how many more such lines? After we write down two equations, how many more such lines can pass through this given point, or how many more lines are there and why? So Dhairya has already answered. There are infinitely many lines. And you have to give the reason. So you can give the reason in your own words also, कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसमें से आप कितनी लाइंस पास करवा सकते हो। The answer will be infinitely many. Vamika, Vanish, Raghav and Rajveer. Ma'am, Vamika and Vinish is already there. Rajveer is also there. Yes, 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 yes. They are all here. That's why. Raghav, can you hear me, beta? Raghav, Rajveer, and Vamika and Vanish. Yes, ma'am. Beta, these 4 students, आपकी attendance बहुत कम है. You have a lot of absentees. Try to be regular. Okay, ma'am. All right. I think there is one more student which I am not able to recall. एक बच्चे का नाम नहीं मुझे याद आ रहा. I will try to see my register again. Raghav, Rajveer, Vamika and Vanish, if you all can hear me. Only one of you has responded. I don't know about others. Vanish, if you're online. Yes, ma'am. Beta, try to be regular. All right. And every time you are taking a day off, do inform me and your subject teachers. Yes, ma'am. Question number 3 here. If the point lies on the graph, find the value of A. This is an important question. Point lies on the graph means it is a solution of this equation. अगर आपको दिया गया है कोई भी पॉइंट जो ग्राफ पे लाई कर रहा है, इक्वेशन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इक्वेशन का सॉल्यूशन है मींस उस पॉइंट में से आप x और y की वैल्यू अगर आप अपनी इक्वेशन में डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी. तो आपको करना क्या है, सिंपली यूज द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम दिस पॉइंट इन योर इक्वेशन एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था. If you can recall, 4.2 में भी ऐसा क्वेश्चन था. उसमें उन्होंने कहा था कि आपके पास सॉल्यूशन है, x equals to this, y equals to this is the solution of the equation. Find k, और I think a, उसमें आंसर 7 आता है.
This one here, take a look. You are given values of x and y directly और आपको कहा गया है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर जो अभी हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको जो आंसर है वो पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स बना के दिए हुए हैं इस तरह से ब्रैकेट में. अब आप बताओगे यहाँ से x की वैल्यू कौन सी है और y की कौन सी है बिफोर यू पुट इट इन द इक्वेशन. Can anyone tell me if the point is 3, 4 acting as a solution, what are the values of x and y? Ma'am, The 3 is value x of and y is 4. and the y is 4. That's correct. X is 3 and y is 4. You simply have to use those values in the equation and find out the missing variable. Correct. That's right, Srishti. This is third question. We are given the equation as I'm just writing down what's given to me. मुझे एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और कहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसके ग्राफ पे लाई करता है. 3, 4 lies on the graph of this equation. So what do I understand from here? This means 3, 4 is a solution of this equation. And if this is a solution, I can use the values of x and y obtained from this point in the equation. X is 3, y is 4. I can put these in the equation. Let's number it as 1. 3 multiplied by 4 equals to a multiplied by 3 plus 7. So this is 3a plus 7 equals to 12. Then solve. The value of a comes out to be 5 by 3. Done. If anyone is writing this down, can we continue? Question number 4, extremely important. The taxi fare in a city is as follows. Fare, I hope you understand what fare is. Taxi के जो charges लग रहे हैं वो इस तरह से charge कर रहे हैं. For the first kilometer, जो पहला 1 किलोमीटर होगा उसके लिए 8 रुपीस लगेंगे. ये फिक्स्ड है. चाहे किसने 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, चाहे किसने 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है, चाहे किसने 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर होगा उसके 8 रुपीस लगेंगे. उसके बाद दे आर सेइंग सबसीक्वेंट डिस्टेंस, पहले 1 किलोमीटर के बाद मतलब दूसरे किलोमीटर से स्टार्ट होते हुए जो चार्जेस होंगे वो होंगे 5 रुपीस पर किलोमीटर. पहले का 1 किलोमीटर 8 रुपीस लगेंगे उसके बाद जो सेकेंड किलोमीटर होगा उसके लिए 5 रुपीस लगेंगे, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए भी 5 रुपीस लगेंगे, फोर्थ किलोमीटर के लिए भी 5 रुपीस लगेंगे, सो ऑन. इस तरह से जो है टैक्सी का फेयर कैलकुलेट किया जा रहा है.
उन्होंने कहा है कि जो डिस्टेंस कवर करना है अगर वो x से रिप्रेजेंट किया गया है और टोटल फेयर को हम y से रिप्रेजेंट करें, तो इक्वेशन बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड देन ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप, स्पेशली जहां पे आपको टैक्सी फेयर के ऊपर बेस्ड रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है. टाइप इंपॉर्टेंट है, मींस रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसका ग्राफ बनाना है आपको. पहले इक्वेशन बनाओगे, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे और फिर ग्राफ बनाओगे. दैट टाइप इज इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट, स्टेटमेंट सम्स में से अगर मुझे पिक करना हो कि कौन सी टाइप बहुत बार पूछी जाती है, दैट दिस इज द वन. टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी मॉडिफाई भी होती है. वंस वी डू दिस वी विल टेक वन एक्स्ट्रा पार्ट आफ्टर वी कंप्लीट द चैप्टर. So let's just discuss how we are going to form the equation. उन्होंने दो तीन चीजें यहाँ पे कही हैं other than the variables given. थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, they have already indicated कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. एग्जाम में अगर आप अपनी तरफ से लेट कर रहे हो सकता है कि आप ऑपोजिट लेट कर लो तो आपकी इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट लगी. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा. इफ यू यूज डिफरेंट वेरिएबल्स, x फॉर द कॉस्ट एंड y फॉर द डिस्टेंस, ऑपोजिट टू व्हाट्स गिवन, तो आपकी इक्वेशन भी ऑपोजिट वे में बनेगी. I'm going to begin with what they have given to me in the starting. Taxi fare, ये y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और distance covered is represented by x. The fare will be written with rupees, the distance will be written with kilometers. Right. अब ये जो डिस्टेंस कवर्ड है इसके ऊपर हमारे चार्जेस लगने हैं. फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर है, उसके लिए 8 रुपीज लग जाएंगे. फॉर सबसीक्वेंट डिस्टेंस, if anyone does not understand the meaning of the word subsequent, तो इसको आप लेमैन की टर्म्स में बोल सकते हो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, बाकी का जो डिस्टेंस है. टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो x किलोमीटर्स है, उसमें से उस x किलोमीटर में से पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपीज लग गए. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? ये सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको फॉर्म करना है यहाँ पे. Rishabita, I'm not able to hear you. You have already given the answer. I think you can just put in the chat box. Ma'am, 5x plus 3 equals to y. And the answer. Okay. 5x plus 3 equals to y. Let's do it step by step. Total हमारा x है, उसमें से आप ये starting के 1 किलोमीटर को निकाल दो. Remaining distance हो जाएगा x minus 1. और if I could put it this way, आपके पास जो total distance है, please don't write this, just try to understand. Total distance आपका है x, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है आपको. जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए चार्जेस लगेंगे और रिमेनिंग के लिए डिफरेंट लगेंगे. तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लगेंगे, जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर है. रिमेनिंग के लिए लगेंगे ₹5 पर किलोमीटर. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिमेनिंग डिस्टेंस? अगर आपका टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से हम ये वाला 1 किलोमीटर सेपरेट कर दें, रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर्स के लिए हम 5 रुपीज चार्ज करेंगे पर किलोमीटर. जहां पे भी ये वर्ड पर किलोमीटर होगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा. I think I will just put it in this form. That's right, Gunroop. Right, Rishabh.
right? Tell me if you can see if you can see the screen, if the screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So keeping this in mind, let's write down what will be the fare. 1 kilometers के लिए 8 rupees plus remaining distance के लिए 5 for each. So 5 multiplied by x minus 1. इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप ऐसे सोच सकते हो, 1 किलोमीटर्स के लिए वो 5 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो x minus 1 किलोमीटर्स के लिए कितना चार्ज लगेगा? 5 times x minus 1. तो ये जो दो पार्ट्स में हमारा डिस्टेंस मेजर हो रहा है, दोनों जो आपके फेयर्स बन रहे हैं, इनको अगर आप एड अप कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल टैक्सी फेयर कितना है. एंड दिस टोटल फेयर हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय y. The value of y will be equal to 8 plus 5 times x minus 1. The students generally multiply 8 also with the cost given or the distance given here. तो उनको multiply नहीं करना, वो fixed रहेगा. Simplify this and obtain the linear equation. So this is the 5x plus required. equals to- This is the required linear equation. You can put this in the standard form or you can work with it as such and obtain 3 solutions before you plot your graph. अब आपको इसका graph बनाना है. So let's find out 3 answers. I'm just going to form a table of values here. Let's take x as 0. Then y equals to 3. Y will come out to be 3. Let's take x as 1. And y equals to 8. Y will come out to be 8. And if I take x as 2, Then y equals to 13. y equals to 13. We are using these values in equation number 1. अगर आप x की जगह पे 0 पुट करते हो तो y क्या आएगा? x की जगह पे 1 पुट करके y निकाल लो, x की जगह पे 2 पुट करके 1 y निकाल लो. And it's not necessary you have to use these values same as me. You can use any value of your choice. The points formed will be, let's name the points and then plot the graph. So these are the 3 answers. Y is 13. Point A, 0,3. Where would that point be? Y-axis. Point B,
1 and 8. 8. I'll just do an approximation here. This is B 1 comma 8, A 0 comma 3. Then C is 2 and 13, corresponding to 2, 13. Somewhere here, this will be C. So all of you should obtain a graph similar to this. Yes, ma'am. And then draw a line passing through the 3 points. And that's it. This is what you have to do. Overall ये type बहुत important है. थोड़ा सा slightly वो change कर देते हैं statement को. You would find this in the assignment also. I would try to send a couple of questions similar to these, and we will discuss those in the class as well. Anyone who is writing this or anyone who has any doubt, do put the equation alongside the equation we had obtained was 5x plus 3 equals to y. Anyone with any questions? All right. Question number 5th. You are given graphs. With each part, you have to identify the equation for which the graph will be looking like this. आपके पास जो फिगर है 4.6, उसके लिए आपको 4 चॉइसेस दिए हैं. आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा. So what would you do? Anyone? How will you check के इन 4 इक्वेशंस का ग्राफ ये वाला होगा, इन चारों में से किसका ग्राफ ये वाला होगा? Anyone? Ma'am, from the top to the bottom, we can see for y equals to x, we can put all the 3 values and x plus y. Where would you pick the values from? आपको values कहाँ से मिलेंगी नंदन? मैम नीचे ग्राफ से. ग्राफ से. ग्राफ पे आपको जो पॉइंट्स दिए points हुए हैं. mark. राइट, ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं. यहाँ से आप x और y की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर लो. तो जिस इक्वेशन को ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे, all 3 points should satisfy that equation. अगर आप पहली इक्वेशन की बात करो, y equals to x, ओनली ओरिजिन 0 0 सेटिस्फाई करता है इसको. 0 equals to 0. अगर हम पहला पॉइंट ले, यहाँ पे x -1 है और y +1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. वी आर नॉट गोइंग टू डू रिटर्न वर्क फॉर दिस, बिकॉज जनरली ये क्वेश्चन जब आता है ये आपका इस तरह से मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में आता है. ठीक है, आपको 4 इक्वेशंस दी हैं. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी, उसमें x और y की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. तो ग्राफ पे जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं उनमें x और y इक्वल नहीं है, सो दिस इज रिजेक्टेड. सेकेंड पार्ट, x प्लस y शुड बी इक्वल टू 0. जो x और y की वैल्यूज है उनका सम 0 बनना चाहिए. डज दैट वर्क? ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, अगर आप इनकी वैल्यूज को प्लस कर लो, दिस सीम्स टू बी ओके. लेट्स चेक इफ देयर इज एनी अदर पॉसिबल आंसर. थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू 2x, y की वैल्यू होगी डबल ऑफ x. दिस ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. फोर्थ वन को आप सिंपली रिजेक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट कंटेन्स अ कांस्टेंट. अगर आपकी इक्वेशन कांस्टेंट कंटेन करती है, वो कभी भी ओरिजिन में से पास नहीं करेगी. ये मैंने आपको कल एक चीज बताई थी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था. उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स से एक ऑब्जर्वेशन आपको मैंने बताई थी. अगर आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, तभी वो इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास करेगा. If the equation contains a constant, it will not pass through the origin. So out of the first 3, the suitable answer is second one. This is the correct answer. X plus y equals to 0. And similar to this, for the second part, figure 4.7, the graph is given. आपके पास ये 3 points हैं. Point A, point B and point C. आपको जो values दी हुई हैं उनको आप equation में put करके check करो कि कौन सी इक्वेशन इन तीनों से सेटिस्फाई हो रही है. फर्स्ट वन, y इक्वल्स टू x प्लस 2. विल इट सेटिस्फाई? मैम नो.
आपके पास यहाँ No. पे ये वैल्यूज बनेंगी, यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया. लेट्स यूज द वैल्यूज हियर. 3 -1 -2. Ma'am, no. 3 minus of -1 plus 2. Ma'am, yes. Let's check the last one also. We tried with just one value और उसी से ही आपकी 3 ऑप्शंस रिजेक्ट हो गई और आपको बाकी दोनों के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है. You have obtained your answer. अगर आपके पास yes मैम मैम इन द ऑप्शंस मैम वहाँ पर 2 इक्वेशंस भी हो सकती है आंसर. yes it's completely More than possible. one. Yes it's completely Okay possible. मैम. 10th स्टैंडर्ड तक जब एमसीक्यूज आते हैं बेटा आपके पास जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये सॉरी चॉइस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली ये होते हैं वेयर वन ऑप्शन इज करेक्ट. आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इज देयर. हायर क्लासेस में जब आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एमसीक्यूज वेयर मोर देन वन आंसर इज करेक्ट. So always keep an open mind that there could be more